Hello, CA Inter students. This is CA Pragnesh sir, and बहुत ही quickly I'll give you the paper analysis of November 23 paper. All right. So as I'm getting the reviews right now, so paper I got over at 5 p.m. and this is 6:20 p.m. So took a lot of time for the reviews and stuff to come in, but and I've seen the paper and the whole analysis is now in front of you. But broadly, what I can say is that yes, paper was not that easy. Okay. Frankly speaking, मतलब मैं प्रोफेसर हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ. आई नो मेनी स्टूडेंट्स विल नॉट अग्री विथ मी, बट नॉट दैट डिफिकल्ट ऑल्सो. हाँ, जिन्होंने कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स किए थे, फॉर द स्टूडेंट्स हु वेंट इन ओनली विद सिलेक्टेड चैप्टर्स लाइक कंपनी ऑडिट एंड जो बहुत ही फेवरेट होता है, एंड वन और टू अदर इजी टॉपिक्स, करेक्ट, एंड तीन चार चैप्टर ऑप्शन में छोड़ दिए हैं, देन फ्रैंकली स्पीकिंग यू मे फील दैट द पेपर वाज डिफिकल्ट, करेक्ट. बट अदरवाइज मेरा डिटेल्ड कोर्स छोड़ो, फास्ट ट्रैक कोर्स छोड़ो, इवन इफ यू हैव डन रिवीजन लेक्चर्स इट वाज फ्रॉम दैट. बट बाकी प्रोफेसर्स की तरह रिवीजन लेक्चर में मैं ऐसे प्रॉमिस नहीं करता 5 hours आई फिनिश द होल सब्जेक्ट एंड स्टफ. नो, दैट इज लाइक 25 days पैसा डबल होता नहीं है बॉस. सो आई गिव यू द क्विक रिव्यू. फ्रैंकली स्पीकिंग, if you don't want to look at this, it is fine. All right, you may focus on the next paper. But कुछ बच्चों को बहुत quickly सब reviews चाहिए. That is why I'm discussing it. These are suggested answers, hints, very quickly prepared. All right, first time prepare करके सीधा मैं आपको दे रहा हूँ. All right, so if one or two things are here and there, you can write it in the comment box and we will discuss it out. Not a problem at all. Okay, but I'm with you, beta. I was there till the last moment with the students. If you were with me on my Telegram channel and YouTube channel, and without wasting time, chalo, let us quickly start with the review. My best blessings are with you, beta. So question number 1 में करेक्ट इनकरेक्ट वाज गुड. ऑलराइट, आई मीन गुड इन द सेंस इजी नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा बच्चों को थोड़ा टेस्टिंग था. So question 1A, relationship between individual financial items traditionally considered in the audit of business entities may not always be relevant in the audit of government or other non-business public sector entities. ये analytical procedures का copy paste point है, the last point of analytical procedures. जैसे आप Indian Railways ले लो, तो Indian Railways में even if it is in losses since 10 years, तो हम ये नहीं बोलते that boss इसका going concern असर में आ गया. So what I'm trying to say is that normal logics which we apply in business entities may not apply in other non-business public sector entities. It is covered in my revision video also. All right, okay. डिटेल्ड बुक की तो बात ही नहीं कर रहा, उसके अंदर तो है, बट इट इज ऑल्सो कवर्ड इन रिवीजन वीडियो. एनजीओस रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट आर नॉट अलाउड टू मेंटेन अकाउंट्स. सी, एवरी कंपनी व्हिच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट हैज टू मेंटेन अकाउंट्स ऑन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग. सो दैट इज वन कंसेप्ट जो उन्होंने टेस्ट किया. तो आपका करेक्ट इनकरेक्ट, अगर आपसे गलती हो भी गई है, बट इफ योर रीजंस आर प्रॉपर, ऑलराइट, एंड सेक्शन 128 ऑफ कंपनीज एक्ट में लिखा है ये, देन दे आर बाउंड टू गिव यू एटलीस्ट 1 mark. ऑलराइट, समटाइम्स नॉट इज वगैरह नहीं पढ़ा होता है, तो समटाइम्स योर करेक्ट इनकरेक्ट गो हियर एंड देयर. Sales invoice is an example of external evidence. No, it is an example of internal evidence because it is generated internally. All right. Then any casual vacancy in the office of cost auditor will be filled by the board of directors within 30 days, just like auditor के case में होता है वैसे ही. All right, so should not be a problem. Under finance lease is the lease जहाँ पे lease का obviously term long term होगा. So less than 75% of the projected useful life of the lease asset. No. Less than 75% कैसे हो गया? It will be more than 75%. No. All right. बट ऑब्वियसली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंसेप्ट था, सो आई थिंक अराउंड 6 marks जितना आपके अकाउंट्स के ऊपर बेस था. ओके, ये जो पेंसिल वाले मार्किंग देख रहे हो मेरे नहीं है, जिस स्टूडेंट ने भेजे उसके हैं. ओके, ब्लॉक सैम्पलिंग क्या होता है? फर्स्ट 10 लास्ट 10. ऑलराइट, व्हेन यू टेक दिस फर्स्ट 100 एंट्रीज लास्ट 100 एंट्रीज, तो इसमें ऑब्वियसली दिमाग तो लगाती है, इट इज अ स्ट्रक्चर्ड थिंग. ऑलराइट, so block sampling does not involve judgment, does not even use random number. No, no structured approach, this is wrong. Block sampling has judgment. Obviously, it is not using random number tables, but haphazard sampling does not involve any kind of judgment. All right. Government expenditure audit against provision of funds aims at ensuring that each item of expenditure. See, audit against government expenditure में जब हम audit against sanctions करते हैं, तो उसके अंदर ये होता है that whether every single expense is sanctioned or not. For audit against provision of funds, we always say that, we always see that whether the provision was created for the spending or not. All right. तो ये obviously वो इंग्लिश भी अगर आता है तो भी इसमें बैठता नहीं है. Okay. Internal controls over financial reporting is required where auditors are required to express an opinion on effectiveness of an internal control. देखो, ये थोड़ा English was not proper in this particular question. So अगर आपने internal controls over financial reporting section 143 subsection 3 clause I का आपने content भी लिख दिया in the reasons, you should be able to get the marks. All right, correct incorrect. अभी कुछ बच्चे exact section में आते तो इसको incorrect बोल देंगे, कुछ बच्चे को concept आते तो बोलेंगे हाँ this is correct. All right, but the main thing will be the reason that you are writing. Okay. सो कंपनी ऑडिट में से था, बट इट वाज जस्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस हियर एंड देयर फ्रॉम सेक्शन 143, तो जो पूरा रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है ना उसमें से था. ऑलराइट, ओके. देन वी लुक एट क्वेश्चन नंबर 2A. 2A was audit report chapter. Even if you have attended my essay basics lectures
फ्री लेक्चर्स विच हैव अपलोडेड ऑन यूट्यूब, करेक्ट, तो उससे भी काम हो जाता है। आई शुड नॉट से दिस मच वरना बच्चे से फ्री लेक्चर्स ही ले लेंगे, बट फ्रैंकली स्पीकिंग उसमें से भी हो रहा है। सो जब आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देते हो, देन इन दैट केस यू आर नॉट सपोज टू गिव की ऑडिट मैटर्स, ऑलराइट, व्हेन यू आर गिवन डिस्क्लेमर ऑफ एन ओपिनियन, दैट इज द रेस्ट्रिक्शन। सो एक उसका 2 मार्क मिलेगा आपको। एंड देन एक्सप्लेन द रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जब आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देते हो तो देयर आर वेरियस चेंजेस इन द ऑडिट रिपोर्ट, ऑलराइट। सो वो जो ऑडिट रिपोर्ट में चेंजेस हो गए, those changes are supposed to explain ये basis of when change होगा, auditors responsibility paragraph में change होगा, so that is one particular point। so आप थोड़ा disclaimer का concept explain किया है कि audit matters का restriction लिखा है, then expect that you are going to get 3 out of 4 over there। then इवन ऑन द लास्ट डे जो इंपॉर्टेंट बोला था ना, अभी मैं कितना खुद का कंपैरिजन करके दिखाऊं, अदरवाइज यू विल से मार्केटिंग वीडियो है, राइट। सो ऑन द लास्ट डे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का लिस्ट दिया था विच वाज देयर एवरीवेयर ऑन माय टेलीग्राम चैनल स्टफ, उसमें से भी है ये चैप्टर 5 फ्रॉड का। मैंने बोला था वो चैप्टर अच्छे से करके जाओ, बिकॉज उसमें से अगर आता है तो लॉटरी हो जाती है, ऑलराइट, एंड दैट इज वाज द पॉइंट ओवर हियर। Strained relationship between management and current or predecessor auditor is one of the risk factors relating to misstatements arising from fraudulent financial reporting। Mention such circumstances। अब अगर मैनेजमेंट और करंट और प्रीवियस ऑडिटर के बीच में स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप होती है, दैट मींस मैनेजमेंट का कहीं ना कहीं एटीट्यूड गलत जा रहा है, ऑलराइट। सो वो जो एटीट्यूड एंड स्टफ व्हिच कैन लीड टू रिस्क फैक्टर्स, ऑलराइट, एटीट्यूड ऑफ द मैनेजमेंट लीडिंग टू फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑलराइट, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट आप एक्सप्लेन कर सकते थे। बाकी मैनेजमेंट के साथ जो अनयूजुअल प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप्स होते हैं उसके जो एग्जांपल्स है सर्कमस्टेंसेस के, वो एक्सप्लेन कर सकते थे। सो इफ स्टूडेंट्स हैव रिटन ऑन दोस लाइंस दे आर गोइंग टू गेट मार्क्स, ऑलराइट, ओवर हियर। ओके, ये मेरा रिवीजन नोट्स में भी है चैप्टर 5 फ्रॉड का, इवन इफ यू डाउनलोड फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल, सेम हेडिंग्स एंड स्टफ यू विल गेट। Engagement partner shall form a conclusion on compliance with independence requirements that apply to an audit engagement, state the relevant requirements as per SA 220। ये चैप्टर 1 में है, SA 220 क्वालिटी कंट्रोल, उसके अंदर से पूछा गया था। एंड कंप्लायंस विद इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स के अंदर एंगेजमेंट पार्टनर जो होता है, द लीडिंग पार्टनर हु टेक्स केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑडिट, उसे देखना होता है वेदर द फर्म एंड द मेंबर्स हैव कंप्लाइड विद द एंगेजमेंट इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स और नॉट। एंड देन उसको अपनी फर्म नेटवर्क से इन्फॉर्मेशन भी लेनी होती है, इफ एट ऑल इंडिपेंडेंस में कुछ नॉन कंप्लायंस होता है, देन ही हैज टू टेक करेक्टिव एक्शन इन कंसल्टेशन विद अदर्स इन द फर्म। 3 पॉइंट्स, इफ यू हैव रिटन दिस यू गेट योर 3 मार्क्स। देन ये वाला जो है कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल्स 2014, इवन इफ यू सी माय लास्ट डे इंपॉर्टेंट वीडियो, उसके अंदर ये सेक्शन नंबर बोला है मैंने, सेक्शन 143 सबसेक्शन 3, उसमें जो क्लॉज जे है उसमें से पॉइंट है, ऑलराइट, दैट दे हैव आस्क्ड ओवर हियर। और ये पॉइंट पूरा वही है दैट ऑडिटर हैज टू रिपोर्ट की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो इन दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर whether there is a Reddit log facility, audit trail feature has been maintained or not, all right। And that is the reporting requirement, that whether company has maintained it throughout the year and the company has not tampered with that particular report, I mean with that particular audit trail, all right। Okay, बहुत फटाफट जा रहा हूँ so that you can focus on next papers। I'm extremely worried about your mental state, already you should obviously focus on the next paper, but ये फटाफट जा रहा हूँ मैं। Question number 3A was about Caro 2020। Last 2 lines, if you see what are the reporting requirements for inventory, so clause 2A and 2B उसमें लिखना था। 2A में इन्वेंटरी ने मैनेजमेंट ने फिजिकल वेरिफिकेशन किया है कि नहीं किया, रीजनेबल इंटरवल्स, व्हाट वाज द कवरेज, वेदर इट वाज अप्रोप्रिएट और नॉट, एंड इफ देयर आर मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज ऑफ 10% और मोर इन द एग्रीगेट ऑफ ईच क्लास ऑफ इन्वेंटरी, तो फिर वो डिफरेंसेस वेदर दे हैव बीन रेक्टिफाइड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और दूसरा, अगर कंपनी ने लोन लेके रखा है, आई मीन सीसी कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट फ्रॉम वेरियस नेशनलाइज्ड बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन एक्सेस ऑफ ₹5 crores, तो वेदर द कंपनी वो जो उसका जो क्वार्टरली स्टेटमेंट्स फाइल करना होता है बैंक के पास रिगार्डिंग देयर करंट असेट्स, वेदर वो टाइम टू टाइम फाइल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई उसके अंदर डिस्क्रिपेंसीज तो नहीं है। सो दैट वाज द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 3B, नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर्स के ऊपर पॉइंट था, ऑलराइट, रॉ मटेरियल्स एंड कंज्यूमेबल्स। सो AS2 का अगर आपने इसमें लॉजिक लगा के लिखा है, आई थिंक यू शुड बी एबल टू गेट गुड मार्क्स ओवर देयर। देन क्वेश्चन नंबर 3C, ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का मॉड्यूल क्वेश्चन कॉपी पेस्ट है। इम्पैक्ट ऑन सब्सटेंटिव ऑडिट इफ IT रिलेटेड रिस्क आर नॉट मिटिगेटेड, ऑलराइट, इफ IT रिस्क आर नॉट मिटिगेटेड सब्सटेंटिव ऑडिट, दैट मींस द टेस्ट ऑफ डिटेल्स दैट वी डू, द डेटा may not be reliable, ऑलराइट, auditor may not be able to obtain the sufficient and appropriate audit evidence, correct, auditor will have to increase the sample size and verify more manually। तो मतलब ऐसे 2-3 नॉर्मल बोल रहा हूँ, बाकी और भी इसके अंदर पॉइंट है, पर ये मॉड्यूल क्वेश्चन कॉपी पेस्ट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। ये वाला जो है ऐसे 550 का रिलेटेड पार्टी का, आप मेरा लास्ट डे इंपॉर्टेंट वीडियो जाके देख लीजिए, उसके अंदर मैंने ऐसे 550 में ये क्वेश्चन बोला है, दैट दिस, ये 3 पॉइंट बोले उसके अंदर, आई हैव सेड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ऑलराइट, दैट रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज हाई, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। मेरे बच्चों के पास उसका कोड वर्ड भी है, कॉम्प्लेक्स एबनॉर्मल सिस्टम, ये कॉम्प्लेक्सिटी हाई होती है रिलेशनशिप एंड स्ट्रक्चर्स में, एबनॉर्मल ट्रांजैक्शंस यानी नॉट एट मार्केट प्राइस, ऑलराइट, एंड सिस्टम्स कभी-कभी इनइफेक्टिव हो जाती है, ऑलराइट। सो आई होप स्टूडेंट्स हैव रिटन दैट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4A, अगेन ऑन माय लास्ट डे इंपॉर्टेंट वीडियो आई सेड दैट चैप्टर 2 में एक मटेरियलिटी वाला चीज अच्छे से करके जाओ, बाकी भले आप 2 पॉइंट्स पर कंसेप्ट करो। मटेरियलिटी के केस में व्हाट आर द assumptions? देयर आर 4 assumptions that users have: बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंट्स, बेसिक नॉलेज ऑफ बिजनेस, दे अंडरस्टैंड दैट एस्टिमेट्स के अंदर अनसर्टेनिटी है, ऑलराइट, एंड दे टेक रैशनल इकोनॉमिक डिसीजंस। शॉर्ट टर्म बोनस का डिस्क्लोजर होता है, आपका फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट है, एंड एनीवेज ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का 75 पॉइंट का मैंने समरी नोट बनाया था, सो दैट पर्टिकुलर समरी नोट आल्सो हैज दिस, ऑलराइट। देन अगेन चैप्टर 5 फ्रॉड में से आया डिस्क्रिपेंसीज इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, यानी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर जो डिफरेंसेस होते हैं उसके उनको एग्जांपल्स चाहिए थे, ऑलराइट। तो ट्रांजैक्शंस नॉट रिकॉर्डेड इन अ टाइमली मैनर, ट्रांजैक्शंस इम्प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड, डॉक्यूमेंट्स नॉट मेंटेन्ड, अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड, ऑलराइट, वो सारे पॉइंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 4D, आप मेरा वापस से लास्ट डे का वीडियो देख लीजिए। एसए 710 में मैंने दो ही चीज इंपॉर्टेंट बोली है, एक करस्पॉन्डिंग फिगर्स कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डेफिनेशन, ऑलराइट, एंड दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो, एंड एग्जैक्टली दैट इज व्हाट दे हैव आस्क्ड, ऑलराइट। सो करस्पॉन्डिंग फिगर्स यानी कि करंट ईयर प्रीवियस ईयर एसए 710 का है, चैप्टर 11 ऑडिट रिपोर्ट में से, एंड इन माय टेक्स्ट बुक इट इज चैप्टर 8 ऑडिट रिपोर्ट। सो एसए 710 में corresponding figures approach ये होता है where current year previous year both the figures are given and previous year figures are given only to support the current year in a better manner, whereas comparative financial statements में current year previous year both the figures are given and both of them are given in a very detailed manner, all right, as if previous year का भी पूरा financial statements होता है, current year का पूरा financial statements होता है। corresponding figures में we give opinion only on the current year, previous year figures are referred only if the need arises, and in the comparative financial statements we give opinion on both the years current year as well as previous year। you write this, you get your marks। okay, क्वेश्चन नंबर 5A, अगेन मेरा लास्ट डे का वीडियो देख लीजिए ऑडिट एविडेंस का। मैंने लास्ट डे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का लिस्ट दिया था उसमें बोला था अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर इंफॉर्मेशन दैट सपोर्ट्स द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। बेटा दैट कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट, प्लीज डू इट प्रॉपर्ली। सो ऑडिट एविडेंस में अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लेजर, इन मीन आपका चेक्स, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑल ऑफ दैट इज अकाउंटिंग रिकॉर्ड। एंड अदर इंफॉर्मेशन क्या होता है? एमओए। वो देखो ये मेरा ही बच्चा है, उसने लेफ्ट हैंड साइड पे वो किया भी हुआ है मार्किंग, ऑलराइट, ओके। देन क्वेश्चन 5B, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ, वो तो ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट में कोई भी पैराग्राफ पूछ के दे कैन ऑलवेज आस्क यू, एंड उसमें मैंने कोड वर्ड भी दिया बच्चों को मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ का। GIF, गोइंग कंसर्न, इंटरनल कंट्रोल एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर कमेंट्स जाता है। एंड देन ऐसे 210 के अंदर जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अगेन फिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंटरनल कंट्रोल एंड एक्सेस टू द ऑडिटर को, आई मीन प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द ऑडिटर, दोज आर द रिक्वायरमेंट्स, ओके, प्री कंडीशंस के अंदर। देन अगेन एनालिटिकल प्रोसीजर्स, छोटे छोटे चैप्टर्स भी अगर बच्चे ने किए थे तो भी हो जाता है, एंड दिस इज अ मॉड्यूल क्वेश्चन कॉपी पेस्ट। अगर इनकंसिस्टेंसीज एनालिटिकल प्रोसीजर्स में, देन यू हैव टू परफॉर्म, आई मीन रेशियोज कंपैरिजंस करते वक्त, देन यू हैव टू परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर्स एंड डिस्कस द मैटर विद द मैनेजमेंट एंड रिजॉल्व द इनकंसिस्टेंसीज, करेक्ट, तो वो 3 मार्क उसके हैं। देन की ऑडिट मैटर्स के बाद व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड, मैं हमेशा बोलता हूँ रीत RWT, हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट वाली मैटर रहेगी, सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स वाली मैटर रहेगी, सिग्निफिकेंट इवेंट, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस, ऑलराइट, दोस मैटर्स कैन बी की ऑडिट मैटर्स एंड दोस आर द फैक्टर्स दैट वी नीड टू कंसीडर। क्वेश्चन नंबर 6A बहुत ही बेसिक था, चाहे आपने 6A का लिखा हो या ऑप्शन लिखा हो, इसमें बच्चे ओन वर्ड्स में लिखते हैं ऑडिट ऑफ इनकम ऑफ यूनिवर्सिटी, एंड जो भी लिखा आई थिंक नॉर्मली स्टूडेंट्स आर एबल टू स्कोर 2 आउट ऑफ 4 इवन इफ लिटिल बिट इज रेलेवेंट, ऑलराइट। इसमें पूरा का पूरा सजेशन से टैली करने की जरूरत नहीं होता है। क्वेश्चन 6B, ये तो सीधा सीधा हमारी क्वेश्चन बैंक में भी है। फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर डिसाइडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ चेकिंग ऑन सैम्पलिंग प्लान, तो सैम्पलिंग प्लान के बेसिस पे एक्सटेंट ऑफ चेकिंग डिसाइड करने के लिए व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड? भाई एंटिटी के बुक्स अकाउंट्स कितनी रिलायबल हैं, ऑलराइट, देन रिस्क कितना है, ओके, देन व्हाट इज योर टॉलरेंस लेवल, थोड़ा एक दो टेक्निकल पॉइंट भी, अदरवाइज बच्चे लोग ने ROMM, साइज, नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, ऐसे कॉमन पॉइंट्स भी लिखे तो भी 2 टैली हो जाएंगे आपके, एंड यू विल गेट योर 2 मार्क्स। देन क्वेश्चन 6C, ऑलराइट, इस चैप्टर 1 क्वालिटी कंट्रोल में जो एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल जहाँ पे मैं कोड देता हूँ ले अहम, ये तो सब रिवीजन लेक्चर्स में भी है। M फॉर मॉनिटरिंग, ऑलराइट, सो दैट M फॉर मॉनिटरिंग का जो है उसमें से वो मॉनिटरिंग अगर फर्म को करना है अपनी अपना मॉनिटर, तो 3 एक्टिविटीज बिठानी पड़ती है, ऑलराइट, एंड मैं हमेशा कोड वर्ड भी देता हूँ उसका, इवेल्युएट X ऑन ऑनगोइंग बेसिस, तो अलग से सेपरेट इवेल्युएशन करो अपनी फर्म में जो एम्प्लॉयज है उनका, एंड ऑनगोइंग बेसिस पे करो एक मॉनिटरिंग वगैरह बिठा दो। एंड ऑब्वियसली देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट यू कैन राइट ओवर हियर फॉर मॉनिटरिंग, जो ऑडिटिंग फर्म कर सकता है। आप अगर देखोगे मॉनिटरिंग का तो आपको मिलेगा भी, ओके, एग्जैक्टली वो कोड में नहीं लिखा, अपने हिसाब से लिपि लिखा है, नो, सो इट इज फाइन। क्वेश्चन नंबर 6D, मेंशन एनी 3 एक्सपेंसेस व्हिच आर रेवेन्यू इन नेचर बट क्वालिफाइज कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसा भी लेबर वर्क, लेबर चार्जेस आर रेवेन्यू इन नेचर बट कंस्ट्रक्शन में लगा तो रेवेन्यू इन नेचर बट कैपिटलाइज होता है, ऐसे एग्जांपल्स यू आर सपोज्ड टू गिव, ऑलराइट, यस सर, यस सर, यस सर, ओके।
So these are the suggested answers that I've quickly given. Alright, कभी कुछ फटाफट बोलते बोलते अगर आपको लगा एक दो पॉइंट में कुछ डिबेट करना है सर से, तो आप you are free to debate, you can debate it with me. Alright, and MCQs में बच्चे के अभी responses आ रहे हैं. What about the MCQs? So if you can comment in the comment box regarding MCQs, then it is fine. I'm always your well wisher, and I really wish the best for you. Alright, all the very best. But one message was clear from institute कि standards को किया करो. Okay, thank you so much.